Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss a very crucial topic which is related to digital arrest, digital fraud. Let's explore this topic in a very simple way. So first introduction. The Supreme Court's concern. Begin with the Supreme Court's recent call for a detailed inquiry into digital scam targeting Indian citizens. Explain how these scams are spreading fast and becoming a national concern. Mention that this is not just online theft, it is industrial scale cyber fraud. So, in introduction, what we are talking about begin with the Supreme Court recent call फॉर अ डिटेल इंक्वायरी इनटू डिजिटल स्कैम। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो उन्होंने इमीडिएट इंक्वायरी के लिए बोला है, टारगेटिंग जो इंडियन सिटीजन्स को टारगेट कर रहा है फॉर डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल स्कैम। एक्सप्लेन हाउ दिस स्कैम आर स्प्रेडिंग। इसमें हम आगे ये समझाएंगे कि ये स्कैम कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं एंड बिकमिंग अ नेशनल कंसर्न, जो आज के टाइम में एक हमारा नेशनल कंसर्न बन चुके हैं। मेंशन दैट इट इज़ नॉट जस्ट अ ऑनलाइन थेफ्ट। ये अब केवल ना कि केवल ये ऑनलाइन थेफ्ट नहीं बचा, इट इज़ इंडस्ट्रियल स्केल साइबर फ्रॉड। अब ये इंडस्ट्रियल स्केल साइबर फ्रॉड भी बन चुका है। इंडस्ट्रियल स्केल साइबर फ्रॉड मीन्स रिफर्स टू अ लार्ज स्केल या ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ that operates like a business using enterprise methods like software platform using process to conduct fraud against numerous victims. That is industrial scale cyber fraud. And what are digital arrest scam? Define digital arrest scam: fraudster pretending to be a law enforcement officer or government official to extort money. So, example of fake cyber police call or messages demanding payment. Explain how this scam exploit fear and authority to trap victims. तो ये victims को कैसे trap में लाते हैं, वो एक ऐसे fraudsters होते हैं, धोखेबाज होते हैं, वो pretend करते हैं just like a law enforcement officer या कोई ऐसे government official to extort money, उनसे पैसे मांगने के लिए। How show example of fake cyber police, मतलब वो ऐसे फ्रॉड कॉल करते हैं टू बीइंग अ साइबर पुलिस कॉल्स और मैसेजेस फॉर डिमांडिंग पेमेंट। राइज ऑफ स्कैम कंपाउंड्स इन साउथ ईस्ट एशिया। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कैम कंपाउंड्स? So the scam compounds is a term used to describe a physical location, yeah, typically in Southeast Asia, that houses large scale online fraud operations and involves human trafficking and modern slavery, just like forced labor. Describe the network of scam factories in regions like Myanmar, Cambodia, and Thailand. These compounds act like digital sweatshop, forcing trafficked workers to scam people online. Highlights how civil war and weak governance have made these areas safe haven for cybercrime. तो ये जो स्कैम कंपाउंड्स इन साउथ ईस्ट एशिया, ऐसा यहाँ इन रीजन्स में ऐसा क्यों है? बिकॉज इन लाइक म्यांमार, कंबोडिया एंड थाईलैंड, ये एक स्कैम ऑफ फैक्ट्रीज बन चुकी हैं दीज एरियाज। These compounds act like digital sweatshop. Digital sweatshop refers to a modern form of exploitative labor where workers perform low-paid, often precarious tasks online. These workers mostly are trafficked worker to scam people online. Trafficked worker means होता है ऐसे लोग जो उनको पकड़ के दूसरी कंट्री में ले जाना और उनको एक लो वेजेस में उनको काम कराना, which is not precarious workers. Highlight how civil wars and weak governance. Civil wars is a violation conflict within a country between organized group often fought to seize control of government, a reason to change government policies. मतलब एक कंट्री के अंदर ही होता है कुछ ग्रुप और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बीचों में जो गवर्नमेंट को वहाँ की पॉलिसीज़ को हटाना चाहती, ख़त्म करना चाहती हैं, और ये जगह उन लोगों के लिए हेवन बन जाती हैं। These areas safe haven for cybercrime. Human trafficking behind the scam. Human trafficking. Victims are lured by fake job offers with promises of high salaries in Bangkok or elsewhere.
Once there, they are trafficked across border and forced to work in a scam center. They face violence, torture, and harassment if they refuse to cooperate. ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिहाइंड द स्कैम. ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स ज़बरदस्ती फोर्सफुली आप किसी कंट्री के इंसान को पकड़ के अपनी दूसरी कंट्री में ले जाना, फिर उनको लो वेजेस में काम कराना. तो इन विक्टिम्स को क्या किया जाता है, फेक जॉब का एक ऑफ़र दिया जाता है. ल्योड मतलब लालच देना, विद प्रोमिस. क्या क्या प्रॉमिस दिए जाते हैं, हाई सैलरीज इन बैंकॉक और एल्सवेयर. वंस दे आर ट्रैफिक, अगर एक बार इन लोगों को बॉर्डर के पार ले जाता है, फोर्स टू वर्क इन स्कैम, और उनको फोर्स किया जाता है कि आप स्कैम सेंटर में काम करने के लिए. दे फेस वायलेंस, और फिर वो क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं, वायलेंस, टॉर्चर एंड हरासमेंट इफ़ दे रिफ्यूज़ टू कॉपरेट, अगर वो कॉपरेट करने से मना करते हैं तो. द स्कैम दे रन, pig butchering and crypto frauds. Explain what is pig butchering scam. Long-term emotional manipulation leading victim to invest in fake crypto scheme. Mention how this combined romance fraud with cryptocurrency investment traps. These scams are highly professional and targeted educated victims globally. एक्चुअली क्या होता है, इनके पास कुछ एक ऐसी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स होती हैं जो वो यूज़ करते हैं. पिग बुचरिंग एक लॉन्ग टर्म इमोशनल मैनिपुलेशन होता है जो विक्टिम को लीड करती हैं टू इन्वेस्ट इन फेक क्रिप्टो स्कीम. जो इस पे फंस जाते हैं उन लोगों के लिए वो इन सब स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं. मेंशन हाउ दिस कंबाइंड रोमांस फ्रॉड विद क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट ट्रैप्स. दीज स्कैम आर हाईली प्रोफेशनल, मतलब ये जो स्कैम्स फ्रॉड होते हैं वो इतनी हाईली प्रोफेशनल होते हैं एंड टारगेटेड. और सबसे ज़्यादा टारगेट कौन होते हैं, विक्टिम, एजुकेटेड विक्टिम्स ग्लोबली, पढ़े लिखे लोग को वो लोग टारगेट करते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. प्रोसीड्स आर फनल्ड थ्रू इलीगल फाइनेंशियल चैनल्स एंड कन्वर्टेड इनटू क्रिप्टो करेंसी. क्या होती है, जो प्रोसीड्स आर फनल्ड थ्रू इलीगल फाइनेंशियल चैनल, ये एक इलीगल चैनल्स के थ्रू प्रोसीड्स की जाती हैं और ये मनी को कन्वर्टेड इनटू क्रिप्टो करेंसी. इन मनी को, जो इलीगल स्कैम के थ्रू जो मनीज़ आती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उनको वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं. किस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ह्यूवन पे, जो कि एक आर्टिकल में, इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है. वंस कन्वर्टेड, अगर एक बार मनी वो जो कन्वर्ट हो गई क्रिप्टो करेंसी में, देन ऑलमोस्ट अनट्रेसेबल, फिर आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते. कॉम्प्लिकेटिंग इन्वेस्टिगेशन, और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कॉम्प्लिकेशन बन जाती है. ग्लोबल इम्पैक्ट एंड इंडियन कनेक्शन. थाउजेंड्स ऑफ इंडियन हैव फॉलन विक्टिम टू दीज फ्रॉड्स. मतलब इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट है, फ्रॉड स्कैम मनी लॉन्ड्रिंग का. थाउजेंड्स ऑफ इंडियन हैव फॉलन विक्टिम टू दीज फ्रॉड, मतलब थाउजेंड्स ऑफ इंडियन ऑलरेडी इस ट्रैप में फंस चुके हैं. हाईलाइट्स हाउ इंडियन सिटीजन्स आर बोथ विक्टिम्स एंड ट्रैफिक्ड वर्कर इन सम केसेस. मतलब हाईलाइट, इंडियन सिटीजन आर बोथ, मतलब ये विक्टिम्स भी हैं और ट्रैफिक्ड वर्कर्स हैं इन सम केसेस. द स्कैम आर नॉट आइसोलेटेड, मतलब जो स्कैम है ये आइसोलेटेड नहीं है, मतलब एक जगह नहीं रह चुका, एक जगह की प्रॉब्लम नहीं है. दे आर पार्ट ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क, या ये एक ग्लोबल पार्ट ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क बन चुका है. वॉट नीड्स टू बी डन, अ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स. तो हमको इन फ्रॉड के अगेंस्ट क्या करना चाहिए, अ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स, एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स करना चाहिए. स्ट्रेस द नीड फॉर अवेयरनेस कैंपेन बाय आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट. मतलब अवेयरनेस कैंपेन पर ज़रूरत है, स्ट्रेस देने की ज़रूरत है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एसबीआई स्टेट गवर्नमेंट्स. हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, इंडिया शुड स्ट्रेंथन साइबर क्राइम यूनिट्स एंड टेक बेस्ड पॉलिसीज़. और हमारी जो इंडिया को है उसको स्ट्रेंथन करनी चाहिए हमारी साइबर क्राइम यूनिट्स को और टेक बेस्ड पॉलिसीज़ को. कोलैबोरेशन विद चाइना, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूएन इज़ वाइटल टू डिसमेंटल दिस ऑपरेशन. और हमको किस किस के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूएन इज़ वाइटल, मतलब इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिसमेंटल मीन्स टू ब्रेक दीज ऑपरेशंस. दिस इज़ नॉट जस्ट क्राइम, इट इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी दैट नीड्स अर्जेंट इंटरनेशनल इंटरवेंशन. मतलब ये एक क्राइम नहीं है, बस केवल एक क्राइम नहीं, इट इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी दैट नीड्स, इसको बिल्कुल इमीडिएट अर्जेंट इंटरनेशनल इंटरवेंशन की ज़रूरत है. द लास्ट
कंक्लूजन, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। अगर आप अलर्ट रहेंगे और सेफ रहेंगे तो मे बी आप इन चीज़ों से बच के रहेंगे। एंड विद अ स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस मैसेज। तो हम जो अब ये कंक्लूज़न करने जा रहे हैं, इस पैराग्राफ को ख़त्म करने जा रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस मैसेज के साथ, डोंट ट्रस्ट अननोन जॉब ऑफर्स अब्रॉड। मतलब कोई भी अननोन जॉब ऑफर्स आपको अब्रॉड से आती है तो प्लीज़ उस पर ट्रस्ट मत करिए। वेरीफाई मैसेज क्लेमिंग टू बी फ्रॉम ऑफिशियल। अगर आपके पास कोई ऑफिशियल मैसेज आता है, वो क्लेम करता है कि एक ऑफिशियल मैसेज है, तो प्लीज़ उसको वेरीफाई करिए। रिपोर्ट डिजिटल फ्रॉड इमीडिएटली टू साइबर हेल्पलाइन। और अगर आपको लगता है कि ये कोई स्कैम है, फ्रॉड है, तो इमीडिएटली रिपोर्ट करिए डिजिटल फ्रॉड इमीडिएटली टू साइबर हेल्पलाइन।